Good evening students, welcome back to my YouTube channel. I am your Jaswinder Singh Sram once again here. And today we will start syllabus of class 8th, chapter number 1, rational number, and we will follow book NCERT. So today we will discuss firstly a few small definitions, then we will discuss about the property of rational number, and then we will discuss problem related with exercise 1.1. So first of all, I want to tell you about few definitions. First is natural number. Natural numbers are denoted by n, and these are starting from 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to so on. These all are natural numbers. Then whole numbers. Whole number we are denoting by w, and whole numbers are starting from 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to so on. Okay. And third category is of integers. Integers we are denoting by z. Integers we are denoting by z, and these are the collection of negative number, one side negative number, then whole number. So it is a collection of negative number and whole number. Last, which is our main topic, that are rational number. Rational numbers are that number which we can denote in the form of p by q. Okay, p by q. P means numerator, q means a denominator. Okay, and p and q both will be integers. P's value also will be from integers and q's value also will be from integers, but q should not be 0. If q will be 0, then this rational number will be undefined. Getting my point? So these are few examples of rational numbers. First one 2 by 3, second 1 by 2, 3 by 4, minus 1 by 2, minus 7 by 9. So these are few examples of rational number. So first of all, we will start from properties of rational number. Properties. In first property is closure property. Closure property. In other words, we can also say closed. What is the meaning of closure? Closure means if you are performing any operation on rational numbers, suppose you are adding two rational numbers, you are multiplying two rational numbers. Okay, this R means rational. Rational numbers, if you are adding them, if you are subtracting them, if you are multiplying them, if you are dividing them. Okay, if you get the same answer, means your answer after the operation, if your answer will be rational number only, then they are closed. Then they are closed. इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी ऑपरेटर किसी दो रैशनल नंबर के बीच में लगाते हैं, तो अगर आपका आंसर रैशनल नंबर ही होता है तो उनको हम क्या बोल देते हैं? क्लोज्ड. सो मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि रैशनल नंबर अगर आप इनको ऐड करते हैं, फर्स्ट आ जाता है इसमें एडिशन. ओके, 4 मेन ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन. ओके, इफ यू आर एडिंग two rational numbers. Okay, if we are doing addition of two rational numbers, suppose we have a and b, if you are adding them, then you will get result a rational number only. If you are getting rational number, so what we can say that rational numbers are closed under addition. Rational numbers are closed under addition. Why? Because when you will add, rational means q plus q, if you are doing, then you are getting q answer only, means your answer will be in a rational number only. So second in case of subtraction, these are closed or not. So for that we will take, okay, two example. Okay, first of all, take any rational number, and from that we will subtract rational number. Then what you will get answer? You will get answer rational number
only. So we can say that rational numbers are closed. Rational numbers are closed under subtraction. Okay, same in case of multiplication. Third is multiplication. So in multiplication also rational numbers are closed. When you multiply rational number with the rational, then you will get a rational answer only. So what we can say, rational numbers are closed under multiplication. Okay, next, fourth, division. Okay, in case of division, rational numbers are not closed. Okay, rational numbers in case of division, if you are dividing rational by rational, then you will not get a rational answer. Why? Because if you are taking a rational cube, you divide it with 0. Okay, 0 is also rational number, so then its answer will be undefined. Its answer will be undefined, and we can say not defined. So if for one value it is not satisfying, so then we can say rational numbers are not closed under division. So you got, beta, if we are doing addition, then they are closed. If we are doing a subtraction, if you are doing addition, then closed. If you are doing subtraction, then also closed. If you are doing multiplication, then also closed. But if you are dividing and in denominator you got 0, then these are not defined. Okay, this is a first property. First properties are closure property, that you are getting same kind of answer. You are getting answer in a rational number only. This was a property number 1, closure property. Now second property is commutative property. Okay, what is the meaning of commutative? Commutative means that property that if you are applying commutative property, if you are applying any operation between two rational numbers by changing their order, then they are commutative. Okay, how? You take an example that if two rational number, you take example, okay, a plus b, we have 4 operators, plus, minus, multiply and division. If after plus you changing their order, means a plus b and b plus a, if they are giving us the same answer on both sides, then what we can say? We can say they are commutative. Same in case of subtraction. Okay, so first of all we will discuss about addition, that over addition they are commutative or not. Okay, commutative, that they are commutative or not. First one is ab is equal to b plus a. So then what we can say? We can say first, in case of addition, rational numbers are commutative. Okay, because these both answers are equal. Second, in case of subtraction, okay, so subtraction is not commutative. By, because if you will take a number a minus b and b minus a, their answer will be not equal. So what we can say? In case of subtraction is not commutative for rational number. Q I have written rational number. Okay, why? Because when you are doing a subtraction, then these are not equal. Okay, so third one is multiplication. That if you are multiplying two rational numbers, then their answer will be a into b, b into a, and they will be equal.
If both sides they will be equal, then what we can say? We can say multiplication is a commutative. Multiplication is a commutative for q. Q means rational numbers. Clear? Now next is division, last part. In case of division, if you are dividing one rational number with other, okay, and second with one, then they will be not commutative because their answer will be not equal. So division is not commutative for rational number. Rational means q. So you got my point. So out of these four, addition and multiplication is commutative, but subtraction and division is not commutative. Okay, clear? So in commutative what we are doing, mainly we are changing their order. Okay, पहले की जगह पर हम दूसरा लिखते हैं, दूसरे की जगह पर पहला लिखते हैं. अगर ऐसा करने के साथ आपका आंसर इक्वल आता है तो हम कह देते हैं कि ये रेशनल नंबर क्या है? ये रेशनल नंबर हैं कम्यूटेटिव. ओके, सो नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. पहली दो प्रॉपर्टी में हमने नंबर लिए थे दो, कोई दो रैशनल नंबर ले लो. ओके, लेकिन अब एसोसिएटिविटी में हम क्या देखेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि तीन नंबर में से हम पहले दो नंबर पर ऑपरेटर लगाएंगे. ओके, और तीसरे को उसमें ऐड करेंगे. उसके बाद हम लास्ट वाले दो में ऑपरेशन लगाएंगे और उसमें पहला ऐड करेंगे. सो इसके लिए हम पहले उदाहरण लेते हैं एडिशन की. ओके, सो एडिशन के लिए हम चेक करेंगे कि ये एडिशन है जो ये कम्यूटेटिव है और नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दैट a plus b plus c is equal to a plus b plus c. Okay, in case of addition and in case of multiplication, these numbers are associative. Okay, these numbers are associative in case of addition, and in case of multiplication rational numbers are associative. But in case of subtraction and division, a minus b minus c is not equal to a minus b minus c. So what we can say that subtraction and division is not commutative for which type of number? For rational number. So subtraction and division is not associative. So now we will use this property in our problem. Okay, how we will use? First of all, we will take problem from exercise. Okay, problem from exercise 1.1. okay, 1.1 exercise. Okay, first question is there. So in that we will apply these properties. Okay, first example, you write terms. Okay, terms given to us that minus 2 by 3 into 3 by 5 minus 5 by 2 minus 3 by 5, okay, into 1 by 6. Okay, before starting this problem I want to tell you one more property, fourth property, that is distributive property. Okay, distributive property is a very important property. So distributive property is our fourth property. Okay, distributive property. Okay, distributive we are applying in case of
in case over addition and over multiplication. Okay, distributive over addition. Okay, in that case we are applying it for three terms, a plus b into c. okay, a into b plus c, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, a into b plus c. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन. पहले हम क्या करेंगे, a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a को c के साथ. ओके, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है नंबर, जो कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है कि a है जो पहले b के साथ भी मल्टीप्लाई है, a c के साथ भी मल्टीप्लाई है. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं साइड पे. ओके, a क्या आ जाएगा, अकेला आ जाएगा, और b और c की क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी. इट इज इन केस ऑफ addition, and second is distributivity in case of subtraction also. okay, a मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ और a को मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, और उनका हम क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे. ओके, ये दोनों साइड सिमिलर होता है इन केस ऑफ एडिशन ऑल्सो, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. ओके, अगर आपके पास पहला रिजल्ट दिया हुआ है तो उससे आप सेकेंड रिजल्ट बना सकते हैं. अगर आपके पास सेकंड रिजल्ट दिया हुआ है तो उसमें से आपने देखना है कि कौन सी टर्म कॉमन है, उसको हमने कॉमन लिख देना है. जैसे इसमें क्या है, a कॉमन है. ओके, अगर प्लस साइन हो गया तो हम इन टर्म्स के बीच में प्लस साइन रखेंगे, अगर माइनस साइन होगा तो हम वहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस साइन. हाँ, अब हम दीज थ्री प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे. ओके, पहले वाली क्या होगी, इसमें आ गई क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, क्लोजर को तो मैंने बता ही दिया कि अगर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम कैटेगरी में मिलना चाहिए, रैशनल में. कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दीज प्रॉपर्टीज वी विल यूज इन दिस. अब हम इन प्रॉपर्टी के संबंधित एक्सरसाइज 1.1 की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे. ओके, पहले इसमें आ गया फर्स्ट पार्ट में आप देखिए कि इसमें हमको तीन टर्म दी हुई है. ओके, ये हमारी है पहली टर्म, देन दूसरी, देन तीसरी. ओके, जब भी आपके पास टू रैशनल नंबर्स ओके प्रोडक्ट में हो तो उनको हम सपोज करते हैं एज अ सिंगल टर्म. ओके, तो बेटा अब यहाँ पर आप देखिए कि हम लगाएंगे इस पे प्रॉपर्टी, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड मीन्स सॉल्व दीज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई property commutative property. By commutative property, why will you apply? Because first of all in these three terms you have to check that anything is common. So इन तीन टर्म्स में आप देखिए कि कोई चीज़ कॉमन है, तो पहली और तीसरी में क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 3/5 एंड 3/5. सो इन दोनों टर्म को हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म को हमने साथ साथ लिखना है. साथ साथ लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा. तो इंटरचेंज करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ हम टर्म्स का जो ऑर्डर है उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/3 इंटू 3/5. दूसरी टर्म को हम तीसरी की जगह पर लिखेंगे और तीसरी को दूसरी की जगह पर. क्लियर, ये देखिए अब इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया. ओके, ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी के द्वारा किया, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, रीजन आपने लिखना है राइट में. ओके, अब इसमें से आपने क्या करना है, जो कॉमन टर्म है उनको आपने बाहर निकालना है. 3/5 एंड माइनस साइन को हमने बाहर निकाला, जहाँ पर क्या आ गया 2/3, जहाँ पर क्या आ जाएगा +1/6, और एंड में हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2. ओके, ये हमने कैसे किया, ये हमने किया बाय यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, तो अब हम इस ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम. इट्स एलसीएम विल बी 6 डिवाइडेड बाय 3 2 जा, ओके, 3 2 जा 6, देन 2 2 जा 4, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6 1 इंटू 1 ओनली. ओके, ये आपने पहले कर रखा है कि हाउ टू सॉल्व बाय टेकिंग एलसीएम. ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगा -3/5 एंड 5/6 प्लस 5/2. ये टर्म है जो लास्ट वाली, ये उसी तरह से चली जाएगी. ओके, अब हमने क्या करना है, इसको लिखना है 3/5
ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, इंटू 5/6, 5/2, 5 कैंसिल विद 5 एंड देन 3 2 जा 6, ऊपर हमारे पास क्या रह गया 1, नीचे हमारे पास क्या आ गया 2, so -1/2 and 2. Take again its LCM. Its LCM will be 2. 2 divided by 2 1, so means these terms will be same to same, 4/2. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगी। तो हमने देखिए इसमें प्रॉपर्टीज यूज की है, ओनली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, बाय दैट यू कैन सॉल्व इट प्रॉपर्ली। नाउ इसका सेकंड पार्ट जो है इसका बिल्कुल सेम टू सेम है, क्वाइट इजी है, तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका हिंट। ओके, तो सबसे पहले देखिए पहली और तीसरी टर्म में उसी तरह से क्या कॉमन आ रहा है 2/5। उसी तरह से इसका हमने क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। 2/5 माइनस 3/7 ये होगी हमारी पहली टर्म, और ये भाई तीसरी टर्म आ जाएगी दूसरी की जगह, और दूसरी चली जाएगी पीछे तीसरी की जगह, प्लस 1/14 इंटू 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2। ओके, सो अब हम इसको कैसे लिखा, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, और जो भी टर्म्स कॉमन आती हैं वो हम कॉमन लिखेंगे। 2/5 कॉमन आ रहा था तो दोनों में से कॉमन लिख लिया, और यहाँ पर क्या रह गया -3/7, और यहाँ पर -1/14, और लास्ट वाली टर्म है उसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। वो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/4। ओके, और ये भाई कैसे हुआ, ये हुआ बाय कौन सी प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपने रीजन है वो साथ साथ लिखना है, इसके मार्क्स मिलते हैं आपको। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा 14 डिवाइड बाई 7 2, 2 3 या -6, और 14 डिवाइड बाई 14 1 इंटू 1 ओनली। सो आउटसाइड में जो 2/5 था उसी तरह से, लास्ट वाली टर्म थी वो उसी तरह से। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2/5 और यहाँ पर आएगा 5/14 माइनस 1/4। सो ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, 2/5 मल्टीप्लाई 5/14 माइनस 1/4। सो दिस 5 कैंसिल विद 5, 2 7 जा 14, ऊपर क्या आएगा 1, नीचे क्या आ गया हमारा -7। सो इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 28। सो 28 डिवाइडेड बाई 7 4, 4 - 1, 4 इंटू -1 4 -4, देन 28 डिवाइडेड बाई 4 7, 7 इंटू -1 7। सो आंसर क्या आ जाएगा -11/20 आ जाएगा। सो ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें हमने प्रॉपर्टी ये दोनों यूज की, कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसके दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहता हूँ जो है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के रिलेटेड टॉपिक। ओके, फर्स्ट उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हम डिस्कस करेंगे एडिटिव इनवर्स। ओके, एडिटिव इनवर्स मीन्स दैट नंबर बाय एडिंग इन अ गिवन रैशनल नंबर वी गेट 0 रिजल्ट। ओके, एडिटिव इनवर्स को आप क्या बोल सकते हैं, एडिटिव इनवर्स को आप नेगेटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं। वो ऐसा नंबर होता है जो किसी गिवन रैशनल नंबर में ऐड करने के साथ उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे कि आपके पास, पहले तो हम इसका नाम लेते हैं एडिटिव इनवर्स। ओके, और इसको नेगेटिव इनवर्स भी बोल देते हैं, नेगेटिव इनवर्स। ओके, तो इसमें हमने क्या करना है, जो भी गिवन रैशनल नंबर दिया हुआ है, सपोज हमारे पास दिया हुआ है 1, उसका ओपोजिट ले लेना है। ओपोजिट क्या आ जाएगा -1। अगर आपके पास दिया है 1/2 तो इसका क्या लिखना है -1/2, क्योंकि जब भी आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 0। ओके, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0। सो एडिटिव इनवर्स कौन सा नंबर होता है, वो ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर का ओपोजिट होता है और हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं a प्लस -a और -a प्लस a इज इक्वल टू 0, बिकॉज पहले हमारे पास नंबर था a में हमने क्या ऐड किया, उसका ओपोजिट। अगर हमारे पास -a है तो उसमें हमने क्या ऐड किया, उसका ओपोजिट। तो आंसर हमारे पास फाइनल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स। क्लियर? सो दिस इज एडिटिव इनवर्स एंड नेगेटिव इनवर्स। नेक्स्ट है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा नंबर होता है,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम बोल देते हैं किसी नंबर का रेसिप्रोकल ऑल्सो, रेसिप्रोकल। ओके, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो गिवन नंबर है उसका हमने क्या लेना है? रेसिप्रोकल। मीन्स उसको हमने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो आंसर आए वो क्या आए? 1 आए। तो वही पहले हमारे पास दिया हुआ है 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आ गया? रेसिप्रोकल हम कैसे देखते हैं कि इसका जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में चेंज कर देना है, और जो डिनोमिनेटर है उसको हमने क्या चेंज करना है? न्यूमिनेटर। देखिए इसको हम लिख देंगे 2/1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 के साथ से, कैंसिल हो गया, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इसकी। ओके, पहले हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं 8/21। सो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 21/8। When you will cancel them, you will get answer 1. So we have to take only 1/a, or suppose you can take example that we have number 1/a, so we will take its reciprocal a. If they have given you a, then we will take its reciprocal 1/a. Okay, so इसका हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। तो इनका इतना सा डिफरेंस है कि एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं? उसका ओपोजिट लेते हैं, मीन्स उसका सिंबल चेंज करते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं? हम उसको उल्टा देते हैं, उसका 1/, कर देते हैं। ओके, क्लियर? सो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि 0 होता है, वो क्या होता है? वो रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं उसको। 0 को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी का मतलब क्या? वो ऐसी वैल्यू, रैशनल नंबर की ये आइडेंटिटी होती है। क्या? क्योंकि जब हम 0 को किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? रैशनल नंबर। सो 0 क्या होगी? आइडेंटिटी होगी इन केस ऑफ एडिशन। और 1 क्या हो गया? 1 क्या हो गया भाई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मीन्स जब हम इसको किसी भी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? सेम रैशनल नंबर ही आता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 क्या है? हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बिकॉज जब हम किसी नंबर में, रैशनल नंबर में 0 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? सेम नंबर आता है। अगर हम 1 के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका नंबर सेम आता है। तो इसलिए 0 हो गया भी इसका एडिटिव आइडेंटिटी, एंड 1 क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम एक्सरसाइज पर आइए। एक्सरसाइज में हम वो यूज़ करेंगे जो हमने अभी पढ़ा है, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है एक्सरसाइज में? उसमें हमने बताना है कि 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स मैंने आपको बताया कि इसका ऑपोजिट ले लो। 2/8 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा? -2/8। When you will take LCM, 8 2 - 2 0 0/8 means 0. So it means z -2/8 इसका क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया। ओके, क्लियर? एक पार्ट और सॉल्व करते हैं। आपके पास आ गया 6/5 -6/, -5, ये थर्ड पार्ट है। पर फर्स्टली इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, जब भी आपने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आप अगर टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लो तो आपका आंसर वो क्लियर हो जाएगा। ओके, माइनस के साथ माइनस को कैंसिल करो, ये आपके पास आ गया 6/5। और अब हम इजीली लिख सकते हैं कि 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -6/5, बिकॉज व्हेन यू विल ऐड देम यू विल गेट आंसर 0 ओनली। ओके, यू विल गेट आंसर 0 ओनली। और इसमें भी हम क्या कर सकते थे? इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। कैसे? 2/8 है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, जो क्या आ जाएगा? 1/4। सो 1/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1/4। सो 1/4 - 1/4 इसका आंसर आ जाएगा 0। सो हम क्या कह सकते हैं कि 1/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1/4। थर्ड पार्ट में 6/5 का एडिटिव इनवर्स कौन सा था? -6/5। तो ये हो गया क्लियर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने वेरीफाई करना है, आपके पास एक वैल्यू दी हुई है x की, आपने सिर्फ उसको पुट करके देखना है कि जो आपका जो गिवन इन्होंने कंडीशन दी हुई है वो क्या उसको सेटिस्फाई करता है और नहीं करता। x की वैल्यू है 11/15। अब इसमें देखिए, आप यहाँ पर 2 पार्ट है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका दिया है -x इन ब्रैकेट
So put value minus 11/15. When you will open this bracket, this minus will cancel with each other because this minus multiply minus will be plus. ओके मैं ये आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि आपने ये 11 ये आपने 7th क्लास में पढ़ रखा है कि अगर आप सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका पॉजिटिव आंसर आता है। अगर आप नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका पॉजिटिव आंसर आता है। अगर आप ऑपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका नेगेटिव आंसर आता है। ओके देख लीजिए, आप अभी चेक कर लीजिए कि अगर आपने सेम साइन को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? पॉजिटिव। ओके अगर आपने ऑपोजिट साइन को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आता है? नेगेटिव। सो आप देखिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आंसर क्या आया? 11/15 और राइट हैंड साइड में हम चेक करते हैं x की जगह पे हमने क्या पुट करना है? 11/15। अब आप बोथ साइड देखिए कि इधर भी 11/15 आया, इधर भी 11/15 आया। सो ये हमें क्या कर गया? ये सेटिस्फाई कर गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका सेकंड पार्ट अपने आप करना है। ओके सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। और अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। अब आपने क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। नंबर आपके पास दिया है -13। मैंने आपको बोला था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं? उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ही क्या होता है कि उसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल लीजिए, 13 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 1/-13। तो व्हेन यू विल कैंसिल देम यू विल गेट 1 आंसर। सो -13 का भाई रेसिप्रोकल क्या हो गया? मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/13। मीन जो उसको आपने क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, जहाँ पर है -13/18, इसमें हम क्या करेंगे? इसका हम बस ऑपोजिट लिख देंगे, मतलब इसको उल्टा कर लिख देंगे 19/13। तो ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये है 4th पार्ट। अब हम 5th पार्ट में आपने सिर्फ चेक करना कि आपके पास जो 5th पार्ट है, 5th क्वेश्चन है, इनमें प्रॉपर्टी कौन सी दे रखी है। तो पहले आप देखिए भाई, यहाँ पर दिया है -4/5 इंटू 1 इंटू 4/5 इंटू -4/5। और तो ये हमारा क्या हो गया भाई? पहले 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। ओके तो फिर इसको फिर क्या किया? इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। फिर इसमें हमने क्या किया? तो फिर यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया -4/5। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये 1 है, यहाँ पर ये क्या है? ये इसकी आइडेंटिटी है। ओके इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है, आप देखिए कि पहले आपने जो रैशनल नंबर है -4/5, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ और फिर आपने उसी नंबर का ऑर्डर चेंज करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपके पास सेम आंसर आए तो हम 1 को क्या बोल देते हैं? इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर सेम कंडीशन है, तो हम कह सकते हैं कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट आपके पास जो इन्होंने फैक्ट दिया है वो है 13/17 इंटू -2/7, अगेन -2/7 इंटू -13/7। इसमें आपने देखिए, इसमें उन्होंने क्या किया? सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज किया। ऑर्डर चेंज किया तो कौन सी प्रॉपर्टी में ऑर्डर चेंज करते हैं? कम्यूटेटिव में। ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके अब हम चलते हैं 3rd क्वेश्चन में। 3rd क्वेश्चन में आपने देखो क्या किया इन्होंने? पहले नंबर का भाई ऑपोजिट ले लिया, मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास? ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अंडरस्टूड? ओके सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6th। स्टेटमेंट आपने क्या करना है? बुक से चेक करनी है। यहाँ पर आपने समझना है सिर्फ इसका सोल्यूशन कि कैसे आता है, क्योंकि ये जो हमारी स्टडी है ये है कंसेप्ट बेस्ड स्टडी। हमने कंसेप्ट देखने हैं और उनके रिलेटेड हमने प्रॉब्लम जो है सॉल्व करनी है। तो आपने उन्होंने क्या बोला? मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 6/13 multiply by reciprocal of its reciprocal will be 16/7। ओके पहले ये आपके पास नंबर है 7/16, तो इसका रेसिप्रोकल क्या करेंगे? इसका उल्टा 16/7। ओके सो नाउ कैंसल देम और मल्टीप्लाई देम, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई देम। 16 6 जा 96, 13 7 जा 91। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 96/91। पता चल गया आपको?
इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल के साथ, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, इसको उल्टा देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने देखना है कि इन्होंने हमारे को दिया हुई है, टर्म दी हुई है 1/3 6 × 4/3 एज, इसको हमने राइट कर दिया 1/3 × 6 × 4/3। इसको आपने कंपेयर करना है किस प्रॉपर्टी के साथ, a × b × c एंड a × b × c। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और आप क्या कह सकते हैं इसको, एसोसिएटिविटी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है उन्होंने कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 × 1/8, वाई और वाई नॉट। हमने चेक करना है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। पहले देखिए, ये 8/9 को हम सिंपली लिख देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 8 × 1 = 8 + 1 9/8। तो हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा, इधर था भी 8/9, इधर क्या आया -9/8। देखिए इसका रेसिप्रोकल तो हो गया, मगर इसका इन्होंने साइन भी चेंज कर दिया। तो रेसिप्रोकल में जब हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेटिव में हमने पढ़ा, तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि अगर हमारे पास ए टर्म है तो उसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, मीन्स उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे। वहाँ पर हमने ऐसे तो नहीं कहा था कि हम सिंबल को भी चेंज करे थे, ओके, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सिंबल को भी चेंज कर दिया। तो आपने क्या रीजन देना कि जे नहीं है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बिकॉज these terms are opposite to each other. Okay, so one is positive, another is negative. So in case of multiplicative inverse, we are not changing the sign. Okay, so next is question number 9. Question number 9 में हम क्या करेंगे, उन्होंने हमें नंबर दिया है, उन्होंने हमें दिया है कि 0.3 the multiplicative inverse of 3 × 1/3 y और y नॉट। सो इसके लिए हमने क्या करना है, पहले दोनों नंबर्स को लिख लेना है, 0.3 लेफ्ट साइड एंड 3 × 1/3 राइट साइड। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/10। ओके, बिकॉज यहाँ पर डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम डिनोमिनेटर में 10 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसको हमने क्या लिखना है, इसको हमने लिखना है ये रैशनल, ये हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको चेंज करना है इम्प्रॉपर में। तो ये क्या आ जाएगा, 10/3। अब आप देखिए कि ये दोनों टर्म एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो ये क्या होगी, दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमारे पास आ गया 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में आपने देखना है, इनका रीजन देना है कि फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे बोला है कि द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो 0 ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि अगर 0 का आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप इसकी वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते। बार बार 0 से डिवाइड करेंगे, बार बार करेंगे तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल। हमने दो ऐसे नंबर बताने हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, जैसे हो गया -1 एंड 1। अगर आप इनका रेसिप्रोकल भी लेंगे, -1 का आपने रेसिप्रोकल लिया तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 के। अगर आपने 1 का रेसिप्रोकल लिया तो इसका ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 के। तो ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे का जो अपने आप का रेसिप्रोकल होते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव 0। 0 एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो इक्वल टू 0 ही होता है। ओके, नेगेटिव 0 भी पॉजिटिव 0 भी दोनों क्या होते हैं, इक्वल टू 0 ही होते हैं। ओके, 11th क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है क्योंकि वेरी इजी है, तो आपने क्या करना है, 11 क्वेश्चन खुद करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब इट मैक्सिमम, शेयर विद योर फ्रेंड्स and give suggestion. You can comment your query in query box. Thanks for watching.